لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولاك لما خلقت الأفلاك والأرضين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين قادری یمنا رہی غوث اعظم بھی زنم بندے شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خواتین اسلام میری پردہ نشین ماؤں اور بہنیں میرے اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے سلام کیا ہے مدرسے کا یا مسجد کا چندہ نہیں مانگا ہے بولو سلام کا جواب جو ہے حدیث پاک میں ہے جتنی بلندی کے ساتھ سلام کیا جائے اس کا جواب بھی اتنی ہی آواز کے ساتھ دینا واجب ہے السلام علیکم محترم حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث پاک کا میں نے ذکر کیا جس حدیث پاک کو میں نے تلاوت کیا اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا نہ آسمان سبحان اللہ فرمایا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں چاند کو چاندنی عطا نہ کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان میں ستارے نہ بناتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان کا فرش نہ لگاتا آسمان کا شامیانہ لگاتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا وجود نہ بناتا کائنات کو میں پیدا نہ کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو دنیا کے اندر 1,24,000 یعنی تقریباً 2,24,000 انبیاء اکرام کو پیدا نہ کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا نہ کرتا اے محبوب یہ آسمان ہے آپ کے صدقے میں اے محبوب یہ زمین ہے آپ کے صدقے میں اے محبوب آسمان میں جو چاند چمکتا ہے آپ کے قدموں کے صدقے میں اے محبوب آسمان میں تارے چمکتے ہیں آپ کے صدقے میں اے محبوب یہ تمام کائنات آپ کے صدقے میں ہے تو بے ساتھی سے پاک کو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اپنی صدی کے مجدد نے جو پڑھا تو پکار کے کہتا ہے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بہا تمہارے اٹھے بھی بہا تمہارے لیے اٹھے بھی بہا تمہارے لیے محترم حضرات میرے آقا کی ولادت کیسی ہوئی آپ میرے آقا دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو کس طریقے سے تشریف لائے دنیا میں جب میرے آقا تشریف لائے تو کوئی عام بچوں کی طرح نہیں لائے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی عورت جب امید سے ہوتی ہے اس کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اس کو درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر آپ میرے نبی کی امی کہتی ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جس دن سے عبداللہ کا نور میرے شکم میں آیا ہے جس دن
से अब्दुल्ला की निशानी मेरे पेट के अंदर आई है। मुझे कभी दुख महसूस न हुआ, मुझे कभी तकलीफ महसूस न हुई। हाल ये है, हजरत आमना कहती है कि ऐसा महीना गुजरता जाता तो कोई ना कोई नबी मुझे मुबारकबाद देने आता रहता। कभी किसी महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आते कि ऐ आमना मुबारक हो, किसी महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चा पैदा होने वाला है, नबियों का अंबियाओं का सरदार पैदा होने वाला है। जैसे जैसे महीना गुजरते जाते, जैसा जैसा वक्त गुजरता जाता, मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते, मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते। हजरत आमना कहती है जिस दिन से मेरे पेट में अब्दुल्ला का नूर आया है, मुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। अब मुझे कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। एक मर्तबा की बात है, एक मर्तबा की बात है, एक मर्तबा की बात है, एक शख्स और मक्का मुकर्रमा में औरतों में बातें हो रही थी, औरतों में तरह तरह की बातें होने लगी कि ऐसा लगता आमना के जिस्म से खुशबू आती है, ऐसा लगता है आमना ने जो है अब्दुल्ला का शौक मनाना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है अब तो ऐसा लगता है आमना को अब्दुल्ला का गम नहीं है, उनके जाने का गम नहीं है। आमना तो शौक नहीं बनाती है, आमना खुशबू लगाती है, आमना नए नए कपड़े पहनती है, आमना खुशबूदार इत्र को इस्तेमाल करती है। अब औरतों में ये बातें होने लगी, पूरे मक्का मुकर्रमा में ये चर्चे होने लगे। तब ये चर्चे आम हो गए, ये चर्चे पूरे मक्का में गूंजने लगे। एक शख्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और कहने लगा, अरे अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा के मुतवल्ली हो, खाने काबा के मुतवल्ली हो और बनी हाशिम कबीले के सरदार भी हो, मुझे ये बताइए तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मगर तुम्हारी जो बहू है, तुम्हारे बेटे की जो बीबी है जिसका नाम आमना है, उसको तुम्हारे बेटे के जाने का कोई गम नहीं है, वो दुख नहीं बनाती है, शौक नहीं बनाती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तो मैं कैसे मानूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो दुख नहीं करती है, शौक नहीं बनाती है? तो उसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मक्का की औरतें कहती है कि तुम्हारे अब्दुल्ला की बीबी आमना इत्र लगाती है, खुशबूदार इत्र लगाती है, नए नए कपड़े पहनती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर गए और हजरत फातिमा जो नबी की दादी है, हजरत फातिमा से कहा, ऐ फातिमा इधर आओ। तो फातिमा को बुलाया और कहा, ऐ फातिमा, आमना से ये पूछो क्या इसने मेरे बेटे का शौक बनाना बंद कर दिया है? ऐ फातिमा, आमना से ये पूछो क्या इसको अब्दुल्ला के जाने का कोई गम नहीं है, अब्दुल्ला के जाने का कोई दुख नहीं है? हजरत फातिमा ने कहा था, अरे मेरे शौहर अब्दुल मुत्तलिब, एक मर्तबा मैंने आमना से पूछा था, मगर मैंने पूछा था तो आमना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आए मेरे शौहर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आमना से पूछूं, तुम खुद जाओ और खुद जाकर पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ फातिमा उठो, दोनों साथ में चलते हैं। हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब साथ में गए, हजरत आमना के हुजरे मुबारका में गए। जब गए तो देखा कि सास और ससुर आए हैं, तो आप सिमट कर एक कोने में बैठ गई, सिमट कर बैठ जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आए मेरी बेटी आमना, मुझे एक बात बता, एक सवाल तुझसे पूछना चाहता हूँ। आमना ने कहा था, बाबा जान, जो सवाल करना है मुझसे कर सकते हो। आमना कहती है, बाबा जान, बात क्या है, बात बताइए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ आमना, मक्का की औरतें तुम्हारे बारे में क्या क्या बात कर रही हैं, क्या तुम्हें पता है? ऐ आमना, तुम्हें मेरे बेटे के जाने का कोई गम नहीं है, तुम्हें अब्दुल्ला के दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है। इतना सुनना था, हजरत आमना के आंखों से आंसू निकलते हैं और कहती है, ऐ बाबा जान, कसम रब्बे काबा की, जिस दिन से अब्दुल्ला इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं, कसम खुदा की, मैं जो है हर पल परेशानी में, दुख में रह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।
सुभान अल्लाह। ऐ बाबा जान, जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे अब्दुल्ला की याद ना आती हो, अब्दुल्ला की याद ना सताती हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम इत्र क्यों लगाती हो, खुशबूदार इत्र क्यों लगाती हो, कपड़े खुशबूदार कपड़े इस्तेमाल क्यों करती हो? तो हजरत आमना ने कहा था, बाबा जान मेरे दिल में एक राज था जिसको मैं छुपाना चाहती थी। बाबा जान आपने पूछ लिया है तो सुनो, जिस दिन से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे जिस्म से खुशबू उठती है, मेरे जिस्म से खुशबू की अंबार उठती है। जब मैं हालत हत्ता के ये है बाबा जान, जब आप खानाए काबा पर चले जाते हैं पानी की जरूरत पड़ती है, मैं खुद पानी लेने जाती हूँ। रास्ता जो है पथरीला रास्ता है, रास्ते में पत्थर बहुत हैं, कंकर बहुत हैं। जब मैं पानी लेने जाती हूँ बाबा जान पथरीले रास्ते हैं, मगर जब मैं पानी लेने जाती हूँ तो वो पत्थर के रास्ते मोम बन जाते हैं, वो पत्थर के रास्ते मोम बन के पिघलने लगते हैं। बाबा जान जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बाबा जान इतना ही नहीं, मैं कुएं पर जाती हूँ तो कुएं का पानी मुझे देखकर ऊपर आ जाता है। बाबा जान मक्के की औरतें कहती हैं कि आमना तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, जब तक तुम खड़ी रहोगी पानी ऊपर रहेगा। बाबा जान जब से मेरे पेट में अब्दुल्ला की अमानत आई है मेरे जिस्म से खुशबू आती है, और इतना ही नहीं, मैं जिस दीवार से हाथ लगाती हूँ वो दीवार महक जाती है। मैं जिस तकिए पे सर रख के सोती हूँ वो तकिया खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। हजरत आमना अपने घर के अंदर गई, अपने रूम के अंदर गई, अपना तकिया निकाला और कहा, बाबा जान अगर आपको यकीन नहीं है तो इस तकिए को सूंघो, क्या मैंने इस पे इत्र लगाया है, क्या मैंने इस पे खुशबू लगाई है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब तकिए को सूंघा उसमें ऐसी खुशबू है दुनिया के किसी इत्र में खुशबू नहीं पाई जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, लगता है कोई बरकतों वाला बच्चा है, लगता है कोई बरकतों वाला अजमतों वाला बच्चा है। अभी मालूम किसी को नहीं है कि नबी है। हजरत फातिमा एक दीवार से मिट्टी छुटा कर लाई और अपने शोहर के हाथ में दी कि ए अब्दुल मुत्तलिब इस मिट्टी को सूंघो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उस मिट्टी को सूंघा उस मिट्टी से खुशबू आती है और हजरत फातिमा ने कहा, अरे मेरे शौहर आमना कल इस दीवार पर टेक लगाकर खड़ी थी, इस दीवार में अभी तक खुशबू आ रही है। दीवार में अभी तक खुशबू आ रही है। मेरे नबी के आने से पहले माहौल ऐसा, मेरे नबी के आने से पहले की बरकतें देखो। मोहतरम हजरात, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, आपकी आमद होने वाली थी, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, आए जिब्रील कहाँ हो? जिब्रील कहते हैं, ये रब्बे जलील मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने कहा, अरे जिब्रील जाओ और जन्नत को सजा दो। जिब्रील ने कहा, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील रुए ज़मीन पर, कायनात पर, आमना के घर में, अब्दुल्ला के घर में मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। जन्नत सजा दी जाए, जन्नत सजा दो, जन्नत के दरवाजे सजा दो, जन्नत के दरवाजे सजा दो। ऐ जिब्रील जाओ जन्नत में एक मिंबर बना दो। जन्नत में मिंबर बना दिया गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मिकाईल जाओ मिंबर पे बैठ जाओ। मिंबर पर मिकाईल बैठ गए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मिकाईल जाओ, मिकाईल मिंबर पे बैठकर खुतबा पढ़ो। खुतबा मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़ो, मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़ो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे भाइयों जो लोग कहते हैं कि घरों को सजाना फजूल खर्ची है, मस्जिदों को सजाना फजूल खर्ची है, गलियों को सजाना फजूल खर्ची है, नहीं, अगर फजूल खर्ची होती तो अल्लाह फरिश्तों को जमा ना करता,
مرضی ہوتی تو اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم نہ دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ یہ چلتا ہے گھر کو سجانا اللہ کا حکم ہے. گھر کو سجانا جبریل کی سنت ہے. منبر پہ بولنا جبریل کی سنت ہے. اور جلوس نکالنا میں بتاؤں گا کس کی سنت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آئے جبریل. اللہ ارشاد فرماتا ہے آئے جبریل. جبریل نے کہا رب جلیل حاضر ہوں. اللہ فرماتا ہے آئے جبریل چاروں فرشتوں کو جمع کرو. چاروں فرشتوں کو جب جبریل نے جمع کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے آئے جبریل. اے جبریل حضرت اسرائیل کو لو ساتھ میں, میکائیل کو ساتھ میں لو, اسرافیل کو ساتھ میں لو, تم بھی ساتھ میں آ جاؤ. اور چاروں فرشتوں کے ساتھ 1 لاکھ فرشتے اور لے لو. اللہ سے جبریل نے سوال کیا اے میرے مولا, اے میرے پروردگار عالم, بات کیا ہے, وجہ کیا ہے, کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے اے جبریل آمنہ کے گھر میں عبداللہ کا لگتے جگر تشریف لانے والا ہے. اے جبریل جاؤ روئے زمین پر اپنی فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ. جبریل نے کہا اے میرے مولا, اے پروردگار عالم, خاموشی کے ساتھ جانا ہے یا کچھ بولنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے جبریل آج تو کوئی پیغام لے کر دنیا میں نہیں جا رہے, آج وحی لے کر دنیا میں نہیں جا رہے. آئے جبریل سب تمام فرشتے جماعت ہو جاؤ, تمام فرشتے جمع ہو جاؤ اور جماعت کے ساتھ جاؤ اور نعرہ لگاتے ہو جاؤ اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا. نعرہ لگاتے ہوئے جاؤ. نعرہ کون سا ہے؟ اہلاً و سہلاً مرحبا. اے لوگوں جب سنی صحیح العقیدہ جب جلوس نکالتا ہے تمہارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے. اے لوگوں سنو, جب سنی جلوس نکالتا ہے تمہیں فضول خرچیاں نظر آتی ہے, تمہیں بدعت نظر آتا ہے, تمہیں شرک نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے جلوس نکالنا اور جلوس میں چلنا فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ارے ہم بھی تو نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد, کیا کہتے ہیں مرحبا. فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا, اہلاً و سہلاً مرحبا. ارے بھائیو فرشتے آتے رہے, جماعت پہ جماعت آتی رہی. اب اعلان ہو گیا نبی کی ولادت ہونے والی ہے. چاند تارے آمنہ کے گھر میں جھکتے ہوئے نظر آتے تھے. حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے نبی جب محمد کی ولادت کا وقت قریب آیا تو چاند تارے اتنے قریب آ گئے, ایسا لگتا تھا کہ چاند تارے ٹوٹ کر آج ہمارے سروں پہ نہ گر جائے. میں نے سوال کیا اے چاند تاروں, جب آمنہ کے لال کی ولادت ہو رہی تھی تو تم اتنا نیچے کیوں آئے؟ چاند تارے بریلی کی زبان میں کہتے ہیں, چاند تارے بریلی کی زبان میں کہتے ہیں آئے سن لو آئے مسلمانوں, جب آمنہ کے لال کی جب ولادت ہو رہی تھی تو ہم نور کی خیرات لینے آئے تھے, ہم نور کی خیرات لینے آئے تھے. اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح دیوا میں ہوئی بجتا ہے پایا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. نور کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی. سبحان اللہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. محترم حضرات اب میں بتاؤں گا جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اب جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور جبریل نے کہا رب جلیل ارشاد فرما دے. اللہ کہتا ہے اے جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے کر جاؤ. جبریل نے 3 جھنڈے اٹھانے کے بعد اللہ سے کہا اے میرے مولا, اے پروردگار عالم, ان جھنڈوں کا کیا کروں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ, ایک جھنڈا
मशरिक में लगा दो दूसरा झंडा, मगरिब में लगा दो तीसरा झंडा, खाने काबा की छत पर लगा दो। मैंने सवाल किया, अरे मेरे मौला मशरिक में झंडा क्यों लगवाया, मगरिब में झंडा क्यों लगवाया, खाने काबा की छत पर झंडा क्यों लगवाया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मशरिक में हमने झंडा इसलिए लगवाया ताकि दुनिया वालों को पता पड़ जाए कि झंडा जिसका होता है हुकूमत उसकी होती है। मशरिक में झंडा इसलिए लगवाया ताकि पता पड़ जाए मेरे महबूब की हुकूमत मशरिक से मगरिब तक है। और खाने काबा पर झंडा इसलिए लगवाया कि खाने काबा दुनिया के बीच में है, लोगों को पता पड़ जाए पूरी दुनिया में मेरे महबूब की हुकूमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, दमदा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा दुनिया के बीच में है ताकि लोगों को पता पड़ जाए पूरी दुनिया में मेरे महबूब की हुकूमत है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह सबे बिलादत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने रंग बदला सुबह सबे बिलादत। मेरे भाइयों, जब मेरे नबी पैदा लोग कहते हैं ना, एक आंख का काड़ा भी कहता नबी हमारी तरह है, एक टांग टूटी पड़ी है कह नबी हमारी तरह है। मैं बदसूरत अपने आईने में शक्ल देख, नबी बेमिसाल, नबी का हुस्न वो है। आला हजरत कहते हैं जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। सुभान अल्लाह, वो फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, आमना के लाल का हुस्न तो वो है। हजरत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, जब मैं नबी को लेकर मक्का से चली, जब मैं नबी को लेने आई थी तो मेरी सवारी जो थी, जिस पर मैं सवार होकर आई थी, वो बहुत कमजोर थी, सुस्ती से चल रही थी, सुस्ती के साथ चल रही थी। मगर मैंने जब नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मैंने लिया, आमना के घर से लिया पालने के लिए से पहले तो ऐसा होता था, बच्चों को जो है खुद नहीं पालते थे बल्कि दाई पाला करती थी, तो वही रिवाज था। तो हजरत दाई हलीमा मेरे नबी को जब लेने आई थी तो धीरे धीरे आ रही थी, तो सवारी कमजोर थी, मगर हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, मैं जब अब्दुल्ला के घर में अब्दुल्ला के लगते जिगर को जब लेने गई, मैंने अब्दुल्ला के लगते जिगर को अपनी गोद में लिया, अपनी आगोश में लिया, मैंने अपने साथ उसको सवार किया, तो जितनी औरतें मेरे साथ में थी सब पीछे रह गई, सबकी सवारियां पीछे रह गई और मेरी सवारी सबसे कमजोर थी, मगर नबी को सवार किया। मेरी सवारी में जो है ताकत पैदा हो गई, खुशबूदार मेरी सवारी हो गई, सबसे आगे आगे चलने वाली मेरी सवारी हो गई। मुस्तफा की बरकतें हैं। हजरत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती हैं, जब मैं अब्दुल्ला के घर से नबी को लेकर चली, अपने घर पर लाई थी, तो जो जानवर दूध से खुश हो गए थे, जो दूध नहीं दे रहे थे, जैसे ही मेरे घर में अब्दुल्ला के लगते जिगर का कदम पड़ा, तो जितने जानवर दूध नहीं दे रहे थे, जिन जानवरों के थन खुश्क थे, कसम खुदा की सबके थनों में दूध पैदा हो गया। हाँ, हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, मैं जब आमना के लाल को अपने घर पर लाई थी, आमना के लाल की आमद जब हुई थी, तो मैंने देखा बकरी और शेर एक घाट में पानी पी रही है। मैंने देखा कि जो आलम में खुशहाली बर्पा हो गई थी। मैंने देखा चांद तारे बहुत करीब में आ गए थे।
मैंने देखा जब मैं लेकर जा रही थी तो पेड़ कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मैंने देखा जब मैं आमना के लगते जिगर को अपने घर में लाई, हजरत हलीमा सादिया, गुर्बत का यह आलम है, आपके घर में चिराग नहीं चलता था, मगर जिस दिन से आमना का लाल हलीमा